Today, today during this introductory session, I'll give you a brief idea about the topics that we will cover in our training, and we'll also discuss how these topics are useful in different branches of psychology and how this knowledge will help you to be a healthy person, a better psychologist, and a good human being. So let's start. Ma'am, can you please change the slide for me? Yeah. So during our internship program, our focus will be on learning and practicing techniques and therapies so that we can help our clients to share all the important events and incidents of their life, even those which are not there in their active memory or conscious mind, and thereby empowering them to find best solutions for their situations. Next slide, please. So, according to American Psychological Association, psychology is a study of mind. Next slide. And psychology, derived from Greek word psyche and logos, meaning consciousness, and study to Greeks, meaning consciousness and study. So to Greeks, psychology is simply a study of consciousness. So during our training program, we'll try to understand relationship between mind, consciousness, intellect. We learn how we can have focused and concentrated consciousness, or to put it in other words, we learn how to have a better intellect, which of course will help us to, which it's going to help us in all the branches of psychology, and it's certainly going to improve our efficiency when we understand mind, consciousness, intellect, how they are interrelated. Next slide, please. So we'll learn about conscious and subconscious mind. We'll understand how thoughts created in mind leads to emotions. Thoughts created in mind leads to emotions, and how emotions affect our light body or etheric body, which in turns affect our physical body. And here this physical body, it relates to both physical as well as mental health. Physical means something which is visible, which is on ground. So let us try to understand this with the help of an example. Say the situation is that my client is, she is invited by her friend for a lunch. Now she doesn't know how to drive. Madam And Pooja, behind this love, yes, sister. sorry to interrupt. A few students want a lecture in Hindi, so can we have mix of Hindi and English, please? Yeah, sure, we can do that. Yeah. We can do that. Thank you so much, sir. तो हम बात कर रहे थे फिजिकल बॉडी की. जब हम बोलते हैं फिजिकल बॉडी तो सिर्फ हमारा शरीर नहीं, फिजिकल बॉडी मींस माइंड एंड फिजिकल हेल्थ बोथ. अच्छा, अब वी वर टॉकिंग अबाउट वन एग्जांपल. अगर से somebody is invited and that girl, that client doesn't know how to drive. एक परिस्थिति आई, एक सिचुएशन जिससे मेरे माइंड में एक थॉट क्रिएट हुआ. अब उस थॉट से डिफरेंट क्या क्या इमोशंस क्रिएट हो सकते हैं. आई होप हिंदी इज ओके विद एवरीवन. Like there are few students who want Hindi. Once you'll get registered, we'll segregate. We'll have two separate groups. But all those who are here right now, they can write in the chat box. Hindi is okay with everyone. Then I'll carry on with Hindi only. Ma'am, should I continue in Hindi? Once they'll get registered, then we'll make separate groups for Hindi and English if everybody understands Hindi. Yes, please. Okay, so great, wonderful. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ड्राइविंग अभी आती नहीं है और लॉकडाउन का टाइम है. लॉकडाउन पीरियड में ना तो कैब मिलेगी आसानी से और ना ही ऑटो मिलेगा. अब क्या क्या इमोशंस हो सकते हैं इस एक पर्टिकुलर थॉट से, एक सिचुएशन से. एक इमोशन हो सकता है अगर न्यूरोटिक सिम्टम्स हो, ओह बेचारी मैं, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती, वैसे ही घर में बंद है, अपनी फ्रेंड से भी नहीं मिलने जा सकती. या आ सकता है कि गिल्ट फीलिंग कि
मैं जब यंग थी मुझे तभी ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए थी। आजकल तो 18-18 साल की लड़कियां इतनी अच्छी ड्राइविंग करती हैं। आई एम ग्रोन अप और मुझे ड्राइविंग भी नहीं आता है। तो ये फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ पुअर मी, बेचारी मैं, या इस पर्टिकुलर केस में ही क्लाइंट को रिलेशनशिप काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, या मेरे मम्मी पापा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, नहीं तो वो मेरे लिए एक ड्राइवर तो रख ही सकते थे, या एक दूसरा थॉट आ सकता है, सब बच्चों के मम्मी पापा हेल्प करते हैं, मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर देते और शाम को मुझे अपनी घर की फ्रेंड के घर से पिक कर लेते। तो सेम सिचुएशन है, इनवाइटेड टू अ फ्रेंड्स प्लेस फॉर अ लंच, बट उसमें सैडनेस भी आ सकता है, उसमें गिल्ट भी आ सकता है, और उसमें रिलेशनशिप काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। एंड वन मोर थिंग, टू सम एक्सटेंट इट कैन बी रिलेटेड टू क्रिमिनल साइकोलॉजी ऑल्सो। क्लाइंट को मालूम है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती है, क्लाइंट को पता है कि अभी उसे कैब या ऑटो नहीं मिलेगा आसानी से, चुपचाप से प्लान करके कार की चाबी उठाकर अपने पास छुपा कर रखी, और जिस दिन जाना है कार लेकर चल दी। अब जब कार लेकर जा रहे थे, रास्ते में गलती से एक्सीडेंट हो गया, जहां एक्सीडेंट हुआ उस जगह से हम भाग लिए। तो अगेन द सिचुएशन इज सेम, बट emotions are different, and understanding these emotions help us to understand कि किस तरह की काउंसलिंग की जरूरत है। से इफ आई एम इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और इफ आई एम वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे समझ में आएगा कि क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इमोशंस हैं जिसकी वजह से मेरे कोवर्कर्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हुई है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प मी, will guide me to help them in a better way। मैं जितने बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी उतने अच्छे तरीके से मैं हेल्प कर पाऊंगी। माइंड में थॉट्स आए, थॉट्स से डिफरेंट तरह के इमोशंस आए जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। इन इमोशंस की वजह से हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस आई, मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगी आगे। और इन ब्लॉकेजेस की वजह से, या अगर हम इसको डिस्कस नहीं करें तो नेगेटिव इमोशंस की वजह से मुझको फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स इमर्ज हो गई। तो एज अ काउंसलर हमें क्या करना है, हमें फिजिकल बॉडी से जो सामने विजिबल है, वी विल ट्रेवल डाउन टू मेंटल बॉडी एंड वी विल हेल्प आवर क्लाइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मैं अभी बात कर रही थी एनर्जी बॉडी की या लाइट बॉडी की। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल हीलिंग, बट आई थिंक दोज हु आर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ साइंस, उन्हें भी ये समझ में आएगा, दे विल आल्सो फाइंड इंटरेस्ट इन इट। हमारी जब भी हम थके हुए होते हैं या जब हम बीमार होते हैं, नॉर्मली हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि सो जाओ एंड देन यू विल फील बेटर। जब हम सो जाते हैं तो हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, एंड व्हेन वी आर इन डीप स्लीप then this cosmic energy flows through our energy body। हमारी बॉडी में जो नाड़ी हैं, which are also called energy tubes, there are around 72,000 energy tubes in our body। तब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो करती है when we are in deep sleep, and it heals our body। ये हमारी बॉडी को हील करती है। और जो डीप स्लीप की स्टेट है उसको हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, अनकॉन्शियस मेडिटेशन, या हम मेडिटेशन को कह सकते हैं कॉन्शियस स्लीप। ये जो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो है डीप स्लीप के टाइम एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिटेशन, इट इज फ्लोइंग, कॉस्मिक एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रीली थ्रू आवर बॉडी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इमोशंस की, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। जब हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस बहुत टाइम तक कंटिन्यू करते हैं और बहुत टाइम तक रहते हैं, तो हमारी बॉडी में ये ब्लॉकेजेस या पैचेस हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि थॉट्स आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू दिस फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम वी लर्न meditation also, and we'll learn how meditation helps in removing these blockages, and once these blockages are removed, the cosmic energy, it flows freely in the body, light body is healed and physical body is also healed। One more point I like to, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, जब भी फिजिकल बॉडी पे मतलब विजिबल, जैसे हम आइसबर्ग की भी बात करते हैं, ऊपर 12% नीचे 88%, जब भी
कोई तकलीफ सामने दिखाई देने लगती है हमारे शरीर में, जब मैं शरीर की बात कर रही हूँ दैट मीन्स मेंटल प्रॉब्लम भी, तो पहले हमारी एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेजेस आती है, उसके बाद वो प्रॉब्लम्स हमारी फिजिकल बॉडी में आती हैं. सो वी लर्न द रिलेशनशिप, वी लर्न मेडिटेशन ऑल्सो, और कैसे ये ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं. एंड दिस आई थिंक दिस विल हेल्प इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इन ऑल द फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी. कुमुदिनी मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज. अच्छा, यह इसी स्लाइड में मैं एक और बात बताना चाहूंगी, आप स्लाइड चेंज कर दीजिए. आज के टाइम में even science has agreed that 75 to 90% of diseases are psychosomatic diseases. मतलब जो हमारे थॉट्स थे, जो हमारा माइंड था, वहां से वो इमोशंस में आया, इमोशन से हमारी एनर्जी बॉडी में आया और फिजिकल बॉडी में आया. तो ये जो है साइकोसोमेटिक डिजीजेस की जब हम बात करते हैं, दैट अगेन फ्रॉम इमोशंस और थॉट्स. अच्छा, डिफरेंट इमोशंस दे इफेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. We'll cover that under the topic body syndromes. हम जब body syndromes डिस्कस करेंगे अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तब हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे इमोशंस हैं, किस तरह के इमोशंस बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करते हैं. से फॉर एग्जांपल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम की बात करें जो शोल्डर्स को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, ये सिंड्रोम जो है इट कवर्स द एरिया ऑफ अपर बैक, it covers upper spine and shoulders. और इसका रीजन क्या है? ओवरलोडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मान लीजिए परिवार में कोई सबसे बड़ा बच्चा है और उसको हर समय दिमाग में रहता है कि बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड, मुझ पे जिम्मेदारी है मेरे परिवार की, मुझे सब कुछ देखना है, मुझे सब कुछ मैनेज करना है. मे बी वो एक्चुअली कर रहा है और मे बी सिर्फ उसके मन में डर है. ये इमोशंस और थॉट्स जो क्रिएट होंगे, those emotions and thoughts lead to this body syndromes और this affect the shoulder area. ठीक है, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम कहते हैं. हम और भी बॉडी सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम. वी लर्न अबाउट अदर बॉडी सिंड्रोम्स आल्सो, बट दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम जो शोल्डर एरिया में होता है. या थ्रोट एरिया में जो प्रॉब्लम होती है, हो सकता है हमारे क्लाइंट को गले में प्रॉब्लम हो, उसके लिए जो इमोशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज इनएबिलिटी टू स्पीक. आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, वो आप बता नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से मेरे ऑफिस में मैं अपने बॉस को कुछ कहना चाहती हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे. अपनी पर्सनल लाइफ में आई वांट टू टेल समथिंग टू माय स्पाउस बट आई एम नॉट श्योर कि मैं बोल सकती हूँ या नहीं. या अपनी कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, नहीं कर सकती. When there is inability to express yourself, when there is inability to speak out what you are feeling, then we have problem in the throat area. So all this will be covered under the topic body syndromes. Next slide, sister. चलिए, अभी तक हमने बात की है हमारी कि इमोशनल ब्लॉकेजेस कैसे हो जाती हैं और उससे फिजिकल बॉडी में क्या इफेक्ट आता है और कैसे डिजीजेस होते हैं, बॉडी सिंड्रोम्स. अब ये है कॉग्निशन प्रोसेसिंग, इसको समझते हैं हम दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं कि क्लाइंट को उसके फ्रेंड ने बुलाया लंच पे, उसे ड्राइविंग नहीं आती है और इस समय उसे कैब या ऑटो भी नहीं मिलेगा. अब इस सिचुएशन में एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, ये जो सिचुएशन है इसे हम बोलेंगे डेटा इनपुट. ठीक है, लंच पे बुलाया, ड्राइविंग नहीं आती है, कैब भी नहीं मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन अंदर गई, यहाँ कुछ प्रोसेसिंग हुई. ठीक है, और फिर जो उसका आउटपुट आया, एक आउटपुट आया कि गिल्ट फीलिंग, मुझे ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए थी. एक आउटपुट आया डिप्रेस्ड एंड सैड फीलिंग, ओ मैं अपनी फ्रेंड से भी नहीं मिल सकती, सब लोग तो अपनी फ्रेंड से मिल रहे हैं. एक आउटपुट आया कि रिलेशनशिप काउंसलिंग में जहाँ क्लाइंट को जरूरत हो गई कि मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है. और भी जो हो सकते हैं कि आई रीशेड्यूल द मीटिंग, आई टेल माय फ्रेंड कि हम लोग 1 महीने बाद मिलते हैं जब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए. या आई टेल माय फ्रेंड कि तुम आ जाओ हमारे घर,
मिलना ही तो है, तो तुम हमारे घर आकर मिल लो। अब ये जो आउटपुट आया, उससे पहले जो हमारे माइंड में प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं दिस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस वी विल लर्न ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्रोसेसिंग को। एक फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बच्चा और मम्मी आराम से प्लेग्राउंड में खेल रहे, मजे से, दे आर वेरी हैप्पी, एंजॉयिंग, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। अचानक से बच्चा झूले से गिर गया और उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई और उसके सर से खून आ गया। बच्चा गिर गया, सर पे चोट लग गई, खून आ रहा है, ये हुआ हमारा सिचुएशन देखकर, ठीक है। और अब कुछ प्रोसेसिंग हुआ, रिएक्शंस, सब लोगों का अलग अलग रिएक्शन आएगा। हो सकता है कोई लेडी वहीं पे घबरा कर रोना स्टार्ट कर दे जोर जोर से कि मेरे बच्चे को चोट लग गई। हो सकता है, और ऐसा होता है, आई हैव सीन इन माय क्लाइंट्स, कोई सबसे पहले अपनी मदर को फोन करे, मम्मी छोटू गिर गया उसको चोट लग गई। या ये भी हो सकता है कोई अपने हस्बैंड को फोन करे, सुनो ऑफिस से जल्दी आओ, उसे चोट लग गई है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। या ये भी हो सकता है कि कोई इमीडिएटली रिएक्ट करे, कपड़ा लिया, जहां बच्चे की चोट लगी है वहां अच्छे से कपड़ा लगाया, डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट किया और फिर फैमिली में इन्फॉर्म किया। सो कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये जो आउटपुट अलग अलग लोगों का आता है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या चीज इफेक्ट करती है, ये जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ये किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, दैट वी लर्न ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। देखिए अब हमने बात की इससे पहले वाली कॉजेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेस। हमने बात की कि क्या कॉजेज हैं फिजिकल और मेंटल डिजीजेस के। this yes this one, thank you. Causes of physical and mental diseases, क्या causes हैं? बेसिकली हमें समझ में आया, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, ठीक है। causes of physical and mental diseases and relationship between the, हमने जो अभी कॉजेज डिस्कस किए थे वो साइकोलॉजिकल कॉजेज थे। हम जब अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, हमारे इंटर्नशिप में हम बायोलॉजिकल कॉजेज के बारे में भी पढ़ेंगे और हम सोशल कॉजेज के बारे में भी समझेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कैसे फिजिकल डिजीजेस से मेंटल डिजीज भी हो सकते हैं या कैसे मेंटल डिजीज की वजह से कोई फिजिकल डिजीज भी हो सकता है। दिस आल्सो विल डिस्कस ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन प्रिवेंटिव मेजर्स, जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स सीखेंगे जो ना कि सिर्फ हमारे क्लाइंट्स को हेल्प करेंगे। देखिए हम किसी भी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में काम कर रहे हो, चाहे वो क्रिमिनल साइकोलॉजी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी हो, या रिलेशनशिप काउंसलिंग हो, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, मे बी रिलेटेड टू हेल्थ, कुछ भी हो, प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हमें मालूम होंगे तो हम अपने क्लाइंट को बताएंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और ये preventive measures, no doubt these are going to be very helpful to us also. When we know the preventive measures, we will practice them. हम practice करेंगे जिससे हमारी efficiency increase होगी, और जब हम practice करके results देखेंगे इन preventive measures के, तो हम अपने clients को भी इन preventive measures के बारे में बताएंगे ताकि उन लोगों की भी जो problem, जो situations हैं वो उससे बाहर आ सके। Next slide. अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं हम, इसमें जो बायोलॉजिकल रेमेडीज हैं, ठीक है, वो भी सीखेंगे। बायोलॉजिकल रेमेडीज मतलब हम बात करेंगे कि हमें सुबह किस समय सोना चाहिए, रात को किस समय उठना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। हमें फोन, टीवी, कंप्यूटर में किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आप सब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल मस्ट बी नोइंग वेरी वेल व्हाटएवर वी वॉच इज अ फूड फॉर आवर ब्रेन। तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में भी बात करेंगे और सीखेंगे। सो ऑल दैट विल कम अंडर द लाइफस्टाइल।
और ये बायोलॉजिकल रेमेडी है, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अपना डेली शेड्यूल क्या रखना है, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस। और आपको ये टॉपिक कराने के लिए हमारी जो गेस्ट फैकल्टी हैं डॉक्टर वीरेनु वंदना, शी विल कम एंड शी विल टीच यू अबाउट दिस टॉपिक। वो रेणु वंदना मैम आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगी एंड आई होप वो ज्वाइन भी करेंगी आज हमारा सेशन। उन्हें कुछ काम था बट शायद एंड से पहले वो ज्वाइन करेंगे। और मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ सिस्टर। ओके ओके, थैंक यू रेणु मैम, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कुमुदिनी मैम। नेक्स्ट इज आर असर्टिवनेस। अच्छा, असर्टिवनेस में बहुत मजे की बात जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कई लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं ना दिल की बहुत साफ हूँ, जो मेरे दिल में वही मेरी जुबान पे मैं बोल देता हूँ। अब ये जो दिल के साफ लोग होते हैं कई बारी दे आर वेरी रूड। बहुत अच्छी बात है, जो आप सोच रहे हो आप वही बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो। बट दिल का साफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाओ। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कहते कि अरे ये लंगड़ा है इसलिए धीरे चल रहा है। दैट पर्सन इज हैविंग एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, बट हम रिस्पेक्ट करके अच्छे से बात को कन्वे करते हैं, हम रिस्पेक्टफुली करते हैं, या हम रूड लैंग्वेज यूज नहीं करते। तो दिल का साफ होने का मतलब और जो दिल में है वो बोल देने का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो। और असर्टिवनेस का मतलब आपको जो अपनी बात बोलनी है आप उसे बोलेंगे, ठीक है, अंदर अंदर घुटना या वो ये। एंड वी आर गोइंग टू टीच दिस स्किल्स टू आवर क्लाइंट्स। दे हैव टू एक्सप्रेस, अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना है, ऑनेस्टली प्रेजेंट करना है। ऑनेस्टली से मतलब ये है कि सपोज आपने कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था और मुझे अच्छा नहीं लगा, बट हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी और कॉर्डियल नहीं है, तो मैं दिल का ताड़ बनाकर उसको प्रेजेंट नहीं करूँ, मैं अपनी बात को ऑनेस्टली प्रेजेंट करूँ, पॉजिटिवली प्रेजेंट करूँ। जिसमें इनका अगर किसी की कोई भी लिमिटेशन है तो हम उसको पोलाइट लैंग्वेज में अच्छे से दूसरे के इमोशंस को हर्ट किए बिना प्रेजेंट करेंगे और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेंगे। सो assertive skills will this will come under social remedies। हम assertive skills सीखेंगे जो मदद करेगा हमें हमारी प्रैक्टिस में और हमें हेल्प करेगा हमारी क्लाइंट्स को गाइड करने में। when they will learn these skills they will also improve and they will come over their situations, they will find better solutions for their situations। अच्छा, assertive skills के बाद हम स्लाइड चेंज कर दीजिए, हम सीखेंगे साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस इन इटसेल्फ इट हेल्प्स इन डीप हीलिंग। साइको एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो डीप हीलिंग में मदद करता है। हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं साइको एनालिसिस को। मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। Psychoanalysis is a popular psychotherapy method that may help people struggling with long-term difficulties in the way they feel and think about themselves, the world, and people around them। इस थेरेपी में हम मदद करते हैं अपने क्लाइंट को चीजों को बेहतर समझने में, जो एक सोच बनी हुई है उनकी लोगों के बारे में या खुद के बारे में, उसे अच्छे से समझने में हेल्प करता है साइको एनालिसिस। सपोज अगर मैं बोलूं ओ आई एम नॉट अ गुड कुक, मुझे खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, या मुझे तो लोगों से बात करनी नहीं आती है, कि मैंने अपने बारे में धारणा बना रखी है, या मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, या जैसे नॉर्मली लोगों की धारणा होती है नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, साउथ इंडियंस ऐसे होते हैं, सारे डॉक्टर्स खराब होते हैं, सारे पुलिसमैन खराब होते हैं। ये जो कुछ धारणाएं हैं जो कई बारी इफेक्ट करती हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ को इफेक्ट करती हैं एडवर्सली। तो उन सबको ओवरकम करने, उन सबको रिजॉल्व करने में साइको एनालिसिस हमारी हेल्प करता है। इट इज अ मेथड इन विच इस थेरेपी में हम क्लाइंट को हेल्प करते हैं डीपली रिलैक्स करने के लिए,
और फिर सिचुएशंस या जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें हम रिजॉल्व करते हैं. So the therapy helps to vent or release the suppressed emotions from the person's mind. कभी सपोज जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सपोज मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल सुंदर नहीं. हो सकता है कभी गेट टुगेदर में या कहीं पार्टी में, जब मैं छोटी थी, कोई फंक्शन हुआ, कुछ बात हुई और किसी ने, फ्रेंड ने या किसी ने भी ऐसे कमेंट कर दिया, अरे तुम कितनी गंदी दिखती हो. आई फेल्ट वेरी बैड, आई गॉट हर्ट. मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग लगा, इसने इतने लोगों के सामने मुझे ऐसे बोल दिया. बट क्योंकि सोशल नॉर्म्स हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने समझाया हुआ है, तो सबके सामने मैंने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया. मे भी मुझे इतना बुरा लगा कि मैं रोने जैसी फीलिंग हुई, बट मेरे जो इमोशंस थे उन्हें मैंने सप्रेस कर दिया. वो जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे स्लाइड्स में बात की थी ब्लॉकेजेस की भी, वो जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस रिलीज नहीं होते हैं, उन इमोशंस की वजह से इस तरह के थॉट्स बन जाते हैं. साइको एनालिसिस में क्लाइंट को हम हेल्प करते हैं टू रिकॉल. जैसे बिल्कुल सेशन की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम क्लाइंट को हेल्प करेंगे अपनी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स और इवेंट्स को याद करने में, वो भी जो उसकी एक्टिव मेमोरी में नहीं होंगे. तो साइको एनालिसिस थेरेपी में हम क्लाइंट को हेल्प करते हैं रिकॉल करने में कि क्या चीज है जिस वजह से उसकी वो बिलीफ सिस्टम बना. देन जब वो रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम बोलते हैं री एक्सपीरियंसिंग एंड रीस्क्रिप्टिंग. और ये जो है साइको एनालिसिस थ्योरी, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन क्लाइंट्स विद न्यूरोटिक सिम्टम्स. इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो ये मदद करेगा आपको समझने में कि क्या कारण है, किस वजह से आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनकी एफिशिएंसी कम है, उनकी क्या इमोशनल इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व करने में. इट इज वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग डिसफंक्शनल एंड माल एडजस्टेड बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स, the psychoanalysis therapy, and it removes emotional blockages. So equally effective in health psychology, emotions and spiritual healing. ये एक थेरेपी है जो शायद हर फील्ड में ही आपको मदद करे. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हम हेल्प करते हैं क्लाइंट को अपने रिकॉल करने के लिए कि किस वजह से पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम बना, एंड देन therapist helps to re-experience and re-script the event. अच्छा, अब re-experience और re-scripting event का बात करते हैं कि वो क्या होता है. re-experience कह सकते हैं, सपोज यही इंसिडेंट, ठीक है, जब मैं छोटी थी किसी बर्थडे पार्टी में गई, किसी ने बोल दिया अरे तुम कितनी गंदी दिख रही हो, बहुत बुरा लगा, बट सबको देख के बहुत अच्छे से बिहेव किया, रोए नहीं. During the therapy, when therapist help the clients to recall the incident, जब थेरेपी के बीच में जब थेरेपी करते वक्त थेरेपिस्ट ने क्लाइंट को हेल्प किया कि ये इंसिडेंट था, उस समय यू कैन रिलीज योर इमोशंस. ठीक है, उस समय जो रोना आया और क्लाइंट को जो जो इमोशंस थे क्लाइंट ने एक्सप्रेस कर दिया. जब वो री एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद हम रीस्क्रिप्ट करते हैं. रीस्क्रिप्ट का मतलब हम उस समय क्लाइंट को ये सजेशन देते हैं कि वो बचपन की बात थी जिसने कहा वो भी छोटा बच्चा था, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन विद यू. वो उस समय हुआ था, ऐसा दोबारा नहीं होगा, एंड वी रेक्टिफाई, और हम चीजों को ठीक करने में हेल्प करते हैं. क्लाइंट के सबकॉन्शियस को ये एक्सेप्ट करने में हेल्प करते हैं कि सब ठीक है. एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ शेयर करती हूँ. एक लेडी, शी वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ लास्टिंग रिलेशनशिप. मतलब किसी भी रिलेशनशिप में वो रह नहीं पा रही थी. किसी से बात हुई, थोड़े टाइम उसके साथ अच्छे से रही, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर किसी से, मतलब जो इशू था दैट शी कुड नॉट ट्रस्ट मैन. ठीक है, ऐसा आज के सिनेरियो में हम बहुत से लोगों को देखते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, ऑल मेन आर लाइक दिस. तो हम इस पर्टिकुलर क्लाइंट की बात करते हैं. शी कुड नॉट ट्रस्ट मैन. जब साइको एनालिसिस थ्योरी के बीच में उनसे बात की गई और डीप 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 बात हुई,
तो उन्होंने ये बताया कि उनके पेरेंट्स दे वर हैविंग वेरी स्ट्रेसफुल मैरिज, लड़ाई झगड़ा, पापा का मम्मी पे हाथ उठाना, मम्मी को मारना, और वो 5 साल की थी जब उनके फादर ने फैमिली को अबंडन कर छोड़ दिया। अब जब ये लेडी 5 साल की थी उस समय ये हुआ कि फादर उन्हें छोड़कर चले गए, और जब ये इंसिडेंट्स हुए होंगे, लड़ाई झगड़ा मारना, शायद वो और छोटी होंगी, दैट मीन्स वेरी वेरी यंग एज। ये जो इंसिडेंट हैं या जो इवेंट्स हैं उनकी लाइफ के, वो उनको याद नहीं है, बट ड्यूरिंग द साइकोएनालिसिस थ्योरी शी कुड रिकॉल द इंसिडेंट्स, ठीक है, दैट मीन्स री एक्सपीरियंस जिसे हम बोलते हैं, और फिर उसके बाद रीस्क्रिप्टिंग। रीस्क्रिप्टिंग मीन्स जो आपकी मम्मी के साथ हुआ ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ, एंड दैट इज अ पास्ट, वो बीत गया, वो चला गया। सो इस तरह से हम क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, और ये जो साइको एनालिसिस थ्योरी है वैसे भी फोबियास से रिलेटेड केसेस इन सब में भी काफी हेल्पफुल होती है क्लाइंट्स को हेल्प करने में। तो दिनी मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। कॉन्शियसनेस एंड एटीट्यूड, और हम सीखेंगे कॉन्शियसनेस ओवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अच्छा, इसमें क्या है कि हम कॉन्शियस माइंड की बात करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे, हम ये सीखेंगे कि कैसे कॉन्शियसली हम अपने एटीट्यूड्स और बिलीव्स और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और ये जो सेल्फ अवेयरनेस का टॉपिक है, डॉक्टर गायत्री मित्तल, शी विल टेक दिस टॉपिक, शी विल बी आवर गेस्ट फैकल्टी फॉर दैट। डॉक्टर गायत्री मित्तल आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे सेल्फ अवेयरनेस का। और हम वैल्यूज के बारे में भी सीखेंगे, वैल्यूज जो आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों के लिए काम करेगी, आपकी और आपके क्लाइंट्स की। फिजिकल एंड इमोशनल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं कि छोटी छोटी सी बातों पे हर्ट नहीं होना, छोटी छोटी सी बातों पे उदास नहीं होना। So this we learn under the topic consciousness over attitude and behavior. अच्छा, हम लोग वैल्यूज के बारे में भी बात करेंगे और वैल्यूज के बारे में भी सीखेंगे। और मैं ये बताना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को, कि देखिए स्पिरिचुअलिटी हेल्थ एंड इनर वैल्यूज एकेडमी, हम लोगों का जो एक एम है वो ऑफ कोर्स ये है कि आप लोग अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट बने, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करें। बट when you are working, you are not working only with the intention of making money. आपके जो स्किल्स हैं वो सिर्फ पैसा बनाने तक लिमिटेड नहीं हो, आपकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो, आपके जो स्किल्स हैं आप अपने क्लाइंट्स को तो हेल्प करें ही, as well as you can contribute towards the society. You should your knowledge, your skills should help in the upliftment of society as a whole. So with that, this is all that I have to share. Thank you so much. आप सबने बहुत अच्छे से सब कुछ सुना, and I hope हम लोग मिलते रहेंगे जल्दी भी। अच्छा, अभी जो गायत्री मैम, you are there? Yes, I am there. हाँ, तो अगर आप कैमरा ऑन करके एक बारी स्टूडेंट से मिल लें, डॉक्टर गायत्री मित्तल। और कुमुदिनी मैम, आप प्लीज प्रोफाइल शेयर करेंगी गायत्री मैम का, सो दैट आई कैन टेल स्टूडेंट्स अबाउट हर। Yeah. This is Pooja Kapoor. This is Gayatri ma'am. Okay. She is a consultant psychiatrist in private psychiatry and de-addiction hospital named Rahmat Hospital, Punjab. She has done MBBS from NSCB Government Medical College, Jabalpur. Has diploma in psychological medicine from CIP Ranchi. And she is practicing Raj Yoga meditation since 2012. तो गायत्री मैम आपको कॉन्शियसनेस के बारे में बताएंगी, गायत्री मैम आपको एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज के बारे में बताएंगी, and she herself is also practicing. This is so beautiful. She says that she is working like a double doctor. डबल डॉक्टर मतलब कि स्पिरिचुअल डॉक्टर भी और फिजिकली जो हेल्प करती हैं उनको भी. So she is गायत्री. Welcome ma'am. Thank you, Ji. Okay, and we have Dr. Renu with us.
कुमुदिनी मैम प्लीज डॉक्टर रेणु का भी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए, मैं हाँ जी। स्टूडेंट्स को मिलवा दूं उनसे। डॉक्टर रेणु वंदना, रेणु मैम इफ यू कैन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास ताकि बच्चे स्टूडेंट्स आपसे मिल लें। रेणु वंदना मैम, she has done BAMS from MDU Rohtak, MD in acupressure from Indian Acupressure Society of India, Masters in Reiki. She's a Master Reiki healer from Reiki Healing Foundation, New Delhi. She has done post-graduation diploma in counseling and spiritual health from Annamalai University, MSc in counseling and spiritual health from Annamalai University. She's doing private practice as a doctor since 1993, or she has experience of as a counselor in different schools in Haryana. Welcome, ma'am. तो Thank you. रेनू मैम आपको हेल्दी लाइफस्टाइल्स के बारे में बताएंगे। Thank you very much. Thank you for joining in, Gayatri ma'am. Thank you, Renu ma'am. Thank you. So they are our guest faculty, और that is all that I had to share with you all. अगर किसी की कुछ query है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, very important, अगर किसी को भी हिंदी language से problem हो, if there is anyone who's not comfortable with Hindi, please let your coordinator Kumudini ma'am know about it. So we'll make separate groups for Hindi and English, and those who are comfortable with Hindi, that also should be conveyed. If any student is having any query, you please ask. I'll try to clarify. अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लें, मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने का। There's something in the chat box. Let me see. जी, 2 स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि हिंदी में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग एक बैच बनाएंगे जिसमें हम हिंदी में ही सब कुछ डिस्कस करेंगे। So Kumudini ma'am, I think we don't have much queries. Can we end up with the session? Yeah, and I have gone through the chat box. I think all are comfortable with Hindi. जी बिल्कुल ठीक है, दैट इज परफेक्ट। तो हम जो भी क्लासेस होंगी हिंदी में ही करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी लैंग्वेज से प्रॉब्लम होगी तो हम उसे अलग से इंग्लिश में क्लासेस करवाएंगे। Yeah, sure. थैंक यू सो वेरी मच कुमुदिनी मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग मिलते रहेंगे, और ये जो सारे स्किल्स और थेरेपीज और टेक्निक्स के बारे में हमने बात की उसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और बहुत बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Introduction of Miss Pooja Kapoor was left out, so I would Okay, so I will introduce myself. just, yeah. I have a teaching experience of around 15 years. I was working with Hamdard. I have been conducting workshops for senior citizens, students, women empowerment, and I've worked with some of the rehabilitation centers. I've done MSc in counseling and spiritual health. I've done bachelor's of education with guidance and counseling as an additional subject, diploma in early childhood education and development, and bachelor's of commerce. That is my educational qualification. Thank you, Gomudini ma'am. Thank you, Pooja madam. So I can leave the session? Yeah, it was a wonderful session. Now we leave to participants. If they have any queries, they can please ask. Ji, so then I'm available here for next 5 minutes. So Yeah, sure. in case if anyone wants to ask anything. Yeah, please. आप में से अगर किसी को भी कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।
Miss Shreya is asking, will it be a classroom training program? क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे और आपस में ही प्रैक्टिस करेंगे, लाइक एंड यू विल ऑफ कोर्स, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी केसेस सॉल्व करने हैं, देन ओनली यू विल बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट। जो हमने बात की साइको एनालिसिस की और बॉडी सिंड्रोम्स की, इमोशनल ब्लॉकेजेस की, ये सब नॉलेज हम यूज करेंगे साइको एनालिसिस थेरेपी में। साइको एनालिसिस थेरेपी यूज कर कर आप हेल्प करेंगे अपने क्लाइंट्स को और केसेस को सॉल्व करेंगे। केस सॉल्व करते वक्त आपको जहां भी कुछ प्रॉब्लम होगी, देन फैकल्टी विल हेल्प यू विद दैट। इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। और हम अगर स्टूडेंट्स को जरूरत हुई, अदरवाइज ऑल्सो हम क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक से मैं आपकी क्लाइंट बनूंगी और आप एज अ काउंसलर मुझे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, तो हम एक मॉक ड्रिल टाइप भी करेंगे और इसको कई बारी करेंगे ताकि हमारे स्किल्स इंप्रूव हो। श्रेया, आई थिंक यही पूछना चाह रहे थे आप बेटा? We have unmuted the students so they can speak if they Okay. want. Okay. Shreya is telling us she is Okay. working and Monday to Friday she is available. Okay. अच्छा श्रेया, आप सैटरडे को अवेलेबल नहीं है बेटा? देन वील फिक्स अ क्लास ड्यूरिंग द वीकडेज, ऐसा करेंगे ना? वो आप कोऑर्डिनेट कर No, लीजिएगा कुमुदिनी मैम से। दैट No, she is not available Monday to Friday, and but our Okay. sessions will be on Saturdays only, जी right? जी जी, हम लोगों का यही प्लान है कि हम हर सैटरडे को आप लोगों का सेशन रखेंगे, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं मोस्टली सैटरडे को या तो हाफ डे रहता है या ऑफ रहता है, तो आप लोगों के लिए भी वही कन्वीनियंट होगा। सो दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग। पर ये हमारा टेंटेटिव प्लान है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी तो हम उसको अकॉर्डिंगली देखेंगे, जैसे ग्रुप्स बन पाएंगे। दैट इज हाउ वी फाइनलाइज। Thank you, ma'am. Acha, Ritvik wants to ask about organizational behavior. जी, So जी। will this be covered in internship program? बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्पेसिफिकली और अलग से तो हम बहुत सारा डिस्कस नहीं करेंगे। हम वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट थॉट्स एंड इमोशंस इन जनरल, और कुछ उसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की भी बात करेंगे। लाइक वी आर नॉट हैविंग अ स्पेशल एंड सेपरेट ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। व्हाट विल डिस्कस, organizational behavior will be a part of it, and then emotions and how these can be tackled, that will resolve in the classes. आपके जो भी केसेस या क्लाइंट्स होंगे उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है वो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। Okay, Miss Pallavi is asking what is the duration and what will be working hours? पल्लवी बेटा, वी हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड, बट हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हर सैटरडे को होगा। अच्छा, और कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आई थिंक दे हैव अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि आपको इंटर्नशिप का टाइम दिया जाता है, आप लोगों को इतनी देर इंटर्नशिप करना है। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद कुमुदिनी मैम कि आपको कितनी देर का इंटर्नशिप प्रोग्राम चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल फाइनलाइज करेंगे। क्योंकि पूरा बैच है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो सूट करेगा, जो टाइमिंग, जो इंटर्नशिप पीरियड कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स को बताया जाएगा, दैट विल फाइनलाइज। अभी जो हमारा टेंटेटिव प्लान है वो यही है कि हर सैटरडे को हम लोग सेशन रखेंगे 1.5 से 2 घंटे का, और आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी आप सीखेंगे वो प्रैक्टिस करना है, क्लाइंट्स पे रिजॉल्व करना है, और क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त जहां जहां आप अटकेंगे, जहां जहां आप स्टक होंगे, फैकल्टी आपको उसमें हेल्प करेगी। Lundrela wants to ask whether those who have registered for today's meeting, so will there be like selection from these students for the classes? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ प्लान नहीं किया है बेटे कि हम आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट हाँ, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो हम लोगों के टाइम शेड्यूल से और मैच करेंगी, आपको जो टाइम पीरियड चाहिए होगा, देन ऑफ कोर्स वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है कि हम इस बच्चे को नहीं सिखाएंगे या उस बच्चे को इंटर्नशिप में नहीं लेंगे। We want to help all of you, we want to train all of you, and then we want you to help everybody out
तो it's not like that will anyone will not be left out. ऐसा नहीं होगा. Okay, and Shreya Sharma is writing that she wants to opt for 2 specializations. So is that possible? 2 स्पेशलाइजेशन श्रेया बेटा आप बता सकते हैं. और मुझे ये लगता है कि इनफैक्ट बच्चे देखो समझो, अगर आप हीलिंग सीखोगे, अगर आप काउंसलिंग थेरेपी सीखोगे, तो ये कोई एयर टाइट कंटेनर्स नहीं है कि मैंने इमोशनल हीलिंग सीख लिया तो मैं सिर्फ इमोशनल हीलिंग कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं कर सकती. या अगर मैं क्या कहते हैं क्रिमिनल्स के साथ डील कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट्स के साथ डील नहीं कर सकती. या अगर मुझे रिलेशनशिप काउंसलिंग आती है तो मैं दूसरी काउंसलिंग नहीं कर सकती. तो ऐसा नहीं है. आप जो भी आप ऑप्शन लोगे दैट विल हेल्प यू इन एवरीथिंग. आप बात को समझे. आई थिंक आई वाज एबल टू मेक मायसेल्फ क्लियर. Yes, अगर आप ma'am. इमोशनल हीलिंग सीखो तो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग आएगी. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे. Okay. Thank you, ma'am. You have answered all the questions. Anyone else from the participant who have any queries or want any, having any doubts and want to get clear from Pooja ma'am? You can either speak or type in the chat box. Okay, Miss Pallavi is asking, do we need to pay anything? हाँ बेटा, दिस इज अ paid and you can coordinate regarding this issue. You can coordinate with Kumudini ma'am later. आप बाद में कुमुदिनी मैम जो आपकी कोऑर्डिनेटर हैं उनसे फोन पर बात कर लीजिएगा कि किस तरह से हम करें. Fine. Thank you, Pooja madam, so much. So we can end this session now. Thank you, Kumudini ma'am. And thank you everyone. Thanks to all the participants. Thank you. I can leave the session now, ma'am. Yeah, sure. Thank you so much once again. Thank you, Dr. Gayatri. Thank you, Dr. Renu, for giving your valuable time. Thank you to all the participants.